सेवक। तो जोरदार तालियों से इस देवदूत का स्वागत करते हैं। सबको जीने की नई अदा दी है, सबको खुश रहने की उसने दुआ दी है। हे भगवान उन्हें सारा जहां देना जिसने सबके दिल में अपनी जगह बनाई है। प्लीज वेलकम तरुण मिश्रा एंड मिस्टर खैरनार। एक समाज सेवक के लिए दिल से यही शब्द निकलते हैं कि हो पूरे दिल की हर ख्वाहिश आपकी, हो पूरे दिल की हर ख्वाहिश आपकी, मिले आपको खुशियों का जहां सारा। आप मांगे आसमान का एक तारा तो भगवान दे आपको आसमान सारा। तालियां जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे तरुण मिश्रा जी का। हेलो, तो આજે આપણે 20 એપ્રિલે એક્ટિવ સિનિયર સિટીઝન ગ્રુપ ચાલુ કર્યું. હજુ તો 5 મહિના જ થયા છે આપણને, અને આપણને સમુદ્ર મંથનમાંથી જેમ અમૃત મળે એમ આ 5 મહિના કામ કરતાં કરતાં મારી નજરે પડી એમની વિડીયો તરુણભાઈ મિશ્રાની. અને એક એક વિડીયો તમે જુઓ, આજે આપણને બતાવવામાં આવશે જ. આપ જોશો કે આપણને કલકત્તાના મધર ટેરેસા યાદ આવી જાય એવી સુંદર સેવા. ખરેખર એમાં કાંઈ જ ફરક નથી. મધર ટેરેસાની પણ મેં ઘણી ટીવી વિડીયો અને આમની પણ જોઈ. ગુજરાતમાં મને 3 ભાઈ એવા મળ્યા કે જે આવી સેવા કરે છે. એમાંના એક ભાઈ તરુણ મિશ્રા છે. એમણે પોતાની NGO હેલ્થ ડ્રાઈવ ફાઉન્ડેશન બનાવી છે. એમણે પણ 5 મહિના પહેલા જ રજીસ્ટર કરી, અને આપણી સંસ્થા પણ 5 મહિના પહેલા જ એ યોગાનું છે. તો આપણે એમની વિડીયો જોઈને મને એટલું બધું ગમ્યું કે અઠવાડિયા સુધી હું એ જ જોતો હતો, મોડે સુધી. અને પછી મારાથી રહેવાયું મેં એમને કોન્ટેક્ટ કર્યો અને એમને મેં વિનંતી કરી કે તમે આવું સરસ કામ કરો છો ગુજરાતમાં. અમે બધા મૂળ તો ગુજરાતના છીએ, પણ અત્યારે અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં છીએ. તો અમારા મહારાષ્ટ્ર માટે આવી સેવા કેમ નહીં? અમે પણ આવું સારું કામ અહીંયા કરવા માંગીએ છીએ, અને એમાં અમને આપનો સહકાર અને સહયોગ જોઈએ છે, કારણ કે આપ અનુભવી છો અને આપે કામ કરેલું. અને તમે નહીં માનો, કોઈ પણ જાતની ઓળખાણ નહીં, ડાયરેક્ટ ફોનમાં, અને ફોન ઉપર જ એમને કન્સલ્ટ આપી દીધી. એટલા બધા એ સહજ અને સરળ છે. બાકી તો આપણે કોઈને વિનંતી કરવી પડે કે જોઉં છું, મારી ડાયરી જોઈશ, કઈ ટાઈમ આપું છું, પછી દિવસ આપીશ. આપણે કોઈ પણ જાતની ફોર્મેલિટી વગેરે હા પાડી દીધી, અને આપણને આજનો આપણે જે સમય આપ્યો છે એ હાજર પણ થઈ. ઠેઠ અમદાવાદથી ડ્રાઇવિંગ કરીને અહીં આવેલા છે આપણી વચ્ચે, અને એમને પણ સેવાની એવી ભાવના છે કે જે અમે ગુજરાતમાં કરીએ તમે મહારાષ્ટ્રમાં કરો, બીજા સ્ટેટમાં કરો, અને આ પ્રવૃત્તિ આપણે આગળને આગળ વધારતા રહીએ એ પ્રમાણે આપણે કામ કરીએ. તો એ હેતુથી આજે આપણે એમને બોલાવ્યા, અને એમની સાથે વાટાઘાટ કરતો હતો ત્યાં વચ્ચે મને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દિલ્હીનું એલ્ડર લાઇન વિશે માહિતી મળી. મેં કહ્યું આ તો યોગાનો યોગ જ છે, બધા એલ્ડર સિનિયર સિટીઝન માટેની જ પ્રવૃત્તિ, અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા મોદી સાહેબે કરેલું, તો આપણે તો પછી એને ફોલોઅપ કરવું જોઈએ. એટલે મેં ત્યાં દિલ્હી ફોન કરીને પછી એમણે કહ્યું કે અમારી મહારાષ્ટ્રમાં ઓફિસ છે, અને મહારાષ્ટ્રના ઇન્ચાર્જ ઓફિસર પ્રતિક ખૈરનાર એ આજે આપણી વચ્ચે મોજૂદ છે. તો મેં એમને વિનંતી કરી કે આ દિવસે જ્યારે અમે ગુજરાતથી તરુણભાઈ મિશ્રાને બોલાવે છે, અને તમે પણ સિનિયર સિટીઝન માટેની સંસ્થા દિલ્હીમાં ચાલુ કરી છે, અને મહારાષ્ટ્રમાં આપણે આ કામ ચાલુ કરવું છે, તો આપ પણ પધારો એ દિવસે. તો આપણે સાથે બધા બેસીને આનો આગળ અહીંયા આ યોજના કેમ શરૂ કરવી આપણે. અને આ એક બહુ જ મોટું કામ છે. તમે જાણો છો મધર ટેરેસાનું કામ આજે એને તો ઇન્ટરનેશનલી આખું દુનિયા ઓળખે છે. એ જ કામ આ લોકો કરે છે, પણ એવી રીતે કરે છે કે એ ગયા હોય એના પાડોશીને પણ ના પડે. બીજું આ લોકોની એક વિશેષતા એ છે કે મદદ એટલી બધી કરે છે છતાં પણ કોઈ સમય નહીં, કોઈ ફોર્મેલિટી નહીં. નહીં તો આપણી બધી સંસ્થાઓ આપણે ચલાવીએ છીએ ને, અમે પણ ગુપ્ત સહાયક ફંડ ચાલુ કર્યું. જેને જરૂર હોય એ અરજી કરે, એ અરજી કમિટીમાં વંચાય, પછી બધા હા પાડે
પછી એ એપ્લાય થાય એને મહિને 2 મહિને 5,000 તો 10,000 20,000 25,000 મળે. અને ત્યાં સુધી તેને આબરૂના કાંકરા થઈ ગયા હપ્તાની સામે એને માગે છે નામ ગુપ્ત સહાય ફંડો. અહીંયા આ લોકોનું મેં જોયું, જ્યાં એમને મેસેજ મળ્યો ત્યાં જાય, એને વેરીફાઈ કરે, એના ઘરે જાય, એની ઘરની દશા જુએ, કોણ કોણ છે એ જુએ, અને પછી એમને ફિટ લાગે તો ત્યાં એ જેવું એ નક્કી કરે કે આ વર્ક છે, ડિઝર્વિંગ છે મદદ માટે, તેની મદદ 24 થી 48 થી 72 કલાકથી મેં વધારે નથી જોયા એક પણ વિડીયો. અત્યાર સુધી તો 24 જ કલાક, કોઈ ફોર્માલિટી કાંઈ. એમને કે ચાલો મારી સાથે ગાડીમાં બેસાડી દે, એમને સ્ટોરમાં લઈ જાય, બધા નવા કપડાં અપાવી દે, બૂટ ચપ્પલ અપાવી દે, રેશનિંગની દુકાને જઈને મહિના 2 મહિનાનું 6 મહિનાનું 12 મહિનાનું રેશન ભરી આપે. એ બધું એના ઘરે પહોંચતું કરે. ઉપર ત્રીજે માળે રહેતો હોય કોઈ પહોંચાડનાર માણસના જાતે ઉચકીને ત્રીજે માળ સુધી મૂકવાના વિડીયોમાં જોશે. આવી સુંદર સેવા, અને એ પણ કોણ કરે છે? જેમનું નામ છે એ પ્રમાણે એમની ઉંમર છે, તરુણ છે. તરુણ મિશ્રા આટલા તરુણ હોવા છતાં આપણે આટલા સિનિયર સિટીઝનોને માર્ગદર્શન આપવા માટે લાયક થયા છે. એ જ એમની સેવા બતાવે છે કે કેટલી સુંદર સેવા. તો મને એમ થયું કે ગરીબ કોઈ 11 મહિનાથી નાહેલા ના હોય, ફૂટપાથ પર હોય, એક જ જોડ કપડામાં ગંધાતા હોય એકલા, એવાને જાતે ઉચકીને સમજાવીને હાથ પકડીને એમની ગાડીમાં બેસાડે અને એમને વર્ષથી વાળમાં કીડા પડ્યા હોય એને પણ જાતે પોતાના વાળ કાપી આપે. એમ નહીં કે હજામને બોલાવે, સેવા જાતે જ કરે. એને 11 મહિને 12મા મહિને નવડાવે અને સાબુથી ઘસી અને એને નવા કપડાં પહેરાવે અને એને આશ્રમમાં જગ્યા આપે, બેડ આપે, આરામ કરાવડાવે, ખવડાવે. અને પછી ધીરે ધીરે ત્રીજા દિવસે એને પૂછે ભાઈ તારા કોણ છે તારી ફેમિલીમાં, શું છે શું નહીં, અને પછી જો મેળાપ કરાવી શકાતો હોય તો મેળાપ કરાવી આપે. આવું સુંદર કામ એ કરે છે. અને આપણે ખૈના સાહેબ માટેનું તો એ સંસ્થા મારા માટે નવી છે. મારી ખાલી ફોન ઉપર વાત જ થઈ કે એલ્ડર લાઈન ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ શરૂ કર્યું છે. દરેક સ્ટેટમાં એ લોકો સિનિયર સિટીઝનને મુખ્ય 4 સેવાઓ આપે છે. 4 સેવાઓ મુખ્ય આપે છે. આપણે એમને આ મુખ્ય જાણી લઈશું કઈ સેવાઓ, અને આપણે એમની સેવાનો લાભ અને આમના તરુણભાઈની સેવાનો અનુભવ અને એમની સેવાનો લાભ આપણે બંનેનો લેવાનો છે. એટલે એને મેં આજુબાજુમાં બેસાડ્યું, વચમાં મારે લેવાનું ચાલુ કર્યું. સેવાના લાભમાં જો આપણે એમની ઓળખાણ પણ તમને ના આપીએ તો તમને પણ એમ લાગે કે ભાઈ શું હતું કે તમે આટલી દૂરથી અમને અહીંયા બોલાવે. અમદાવાદથી ડ્રાઈવ કરીને ગાડી લઈને અહીંયા સીધા આવે. એટલે વિચાર કરો, આપણે આપણા માટે તો બધા જીવીએ છીએ, પોતાના માટે, પોતાની ફેમિલી માટે, પણ આપણે બીજા માટે જીવવાનું શીખ્યા નથી. તો અહીંયા આપણી વચ્ચે એવી વ્યક્તિ છે તરુણભાઈ કે જે अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी औरों के लिए भी जीकर देखो. ऐसी कुछ सोच बन के समाज सेवा कर दूसरों की जिंदगी में उजाला लाने वाले तरुण मानवता ही उनका हथियार है, जिसके दम पर वो देश और समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं. लॉकडाउन के समय मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद से तो आप सब वाकिफ है, लेकिन गुजरात के सूरत में एक ऐसा शख्स है जो उनकी तरह इतना दौलतमंद तो नहीं है, लेकिन सेवा भाव किसी हीरो से भी कम नहीं है. लोग उन्हें गुजरात के सोनू सूद कहते हैं. मैं तो उन्हें गुजरात का मदर टेरेसा कहता हूँ. बहुत छोटी सी उम्र में परिवार की आर्थिक हालत देखकर खुद अपने पैरों पर खड़े होने का जिम्मा उठाने वाले तरुण अपने स्तर पर लोगों की छोटी मोटी मदद करके गरीब बेसहारों का सहारा बनते हैं. तरुण उस समय बहुत छोटे थे जब उन्होंने इस दिशा में कुछ करने की सोची. घर की माली हालत ठीक नहीं थी. ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा उठाया. 13 साल की उम्र में सड़क पर धार्मिक किताब बेचने का काम शुरू किया. काम चल गया और उन्हें अच्छी आमदनी भी हुई. ये क्योंकि फुटपाथ पे आमदनी कमाया
तो उनको मालूम है कि आज जो फुटपाथ पर बैठ के फेरिया लोग धंधा करते हैं उनकी क्या मुसीबत है कि बारिश में माल बिक जाता है, धूप में धूप लगती है, पुलिस वाले हैरान करते हैं, म्यूनसिपालिटी वाले हैरान करते हैं, ये सब बातें होते वो मालूम है, इसलिए वो फुटपाथ वाले को पहले ही सहाय देते हैं। इनके बारे में और दो चीज बता दूं मैं आपको कि उन्होंने एक पहली जो इसी क्रम में तरुण ने एक 80 साल के बुजुर्ग की सेवा की जो सूरत की सड़कों पर छोटी सी दुकान लगा के सामान बेचते थे। तरुण की संस्था ने उन्हें एक दुकान और उसमें रखने के लिए सामान उपलब्ध करवाया। इसके अलावा वो समय समय पर जाके उनका हालचाल भी लेते थे और उनकी संस्था हेल्प ड्राइव फाउंडेशन ऐसे ही गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है जो सड़क पर इधर उधर पड़े रहते हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तरुण मिश्रा और उनकी टीम राह भटकते हुए सहारा लोगों की खोज में रहती है और इन्हें जहां कोई मिलता है उन्हें वो शेल्टर होम में ले जाते हैं। उनका मानना है कि कभी मदद के तौर पर परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं, ये नहीं कि आप थोड़े से पैसे या चीज लेकर व्यक्ति की मदद कर दी और बाद में वो क्या कर रहा है वो ये नहीं पता, इसलिए वो बाद में भी उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। तरुण ने कुछ दिव्यांग लोगों की न सिर्फ मदद की है बल्कि उनके लिए रोजगार और माध्यम भी तैयार किया है। तरुण कहते हैं कि समाज सेवा कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो बड़े स्तर पे ही सेवा हो, बस सेवा होनी चाहिए। तरुण मानते हैं कि आपका थोड़ा समय किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है और उन्होंने बदली है, वो भी उनकी वीडियो में देखेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा के कार्य में हर कोई शामिल हो और अपने अपने हिस्से का काम करे, यथाशक्ति सब लोग अपने हिस्से का काम करें। केवल एक करने से कुछ नहीं होता, अगर कोई मिलकर इसमें कुछ न कुछ योगदान देगा तो हम आगे नया बदलाव जरूर ला सकते हैं। और तरुण का भी क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा मिलता था वो लोगों की मदद में वो लगाते थे। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि हम ये सेवा बम्बई में कैसे शुरू कर सके, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता ही रहेगा। और आप सब लोगों में और अगर हिंदी में एमનું પતી ગયું, રાષ્ટ્રભાષા की બહુ સેવા કરી, હવે માતૃભાષાની સેવા કરીએ કે સૌથી પહેલા તો અમારા આમંત્રણને માન આપી આજે ઓડ ડે અને ઓડ ટાઈમ હોવા છતાં પણ આટલી સંખ્યામાં આપ લોકો પધાર્યા છો એ બદલ આપનું સ્વાગત કરું છું અને ખૂબ આભાર માનું છું। અને મને એમ લાગે છે કે આપણા મહાન કાર્યમાં આજે જે આવ્યા છે એ જ સિદ્ધિ છે અને એ લોકો જ આ સેવામાં કામમાં આવશે એવી મને ખાતરી છે। આજે અહીંયા બેસેલા જતી વખતે એક સંકલ્પ લે કે હું દિવસમાં એક નાનામાં નાનું મોટું કોઈ પણ સેવાનું કામ કરીશ અને કર્યા પછી ભૂલી જઈશ, એવું સંકલ્પ લઈને આજે બધા અહીંયા ઉઠશો તો આજનો પ્રસંગ સાર્થક થયો ગણાશે। ફરી એકવાર આપ સૌનો આભાર। एक मेरा क्वेश्चन है कि जो आपकी उम्र है, ये उम्र में सब लड़के लोग गोवा पब जिम में जाना पसंद करें, सिंगापुर घूमते हैं, ये उम्र में आप सड़कों पे घूमते हो। वो भी अपनी जगह सही है, उनको उसमें आनंद आता है, मुझे इसमें आनंद आता है। लोग ये उम्र में लड़कियां घुमाते हैं, ये बुजुर्गों के उनको घुमाते हैं, विकलांगों की सेवा करते हैं, ये क्या राज क्या है, क्या जुनून है ये? खुद नहीं, पहले तो कहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पिछले दिनों में देखी हैं, उसके बाद सब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो बस एक दो बार किया ना, तो मैं हमेशा लोगों से करता हूँ, आप एक दो बार करोगे फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। अभी मेरी ये हैबिट बन गई है, लत लग गई, अभी छूटती ही नहीं है। आपकी लत ऐसे ही लगी रहे, हम लोग यही विश कर रहे हैं सबको लगे। हाँ, आप अभी आपकी एक्टिविटीज के अनुभव सब शेयर कीजिए हमारे साथ, कैसे आपने शुरुआत की। को करा प्रणाम, क्योंकि आप सब मुझसे काफी बड़े हैं
और आज जो सम्मान आपने मुझे दिया तो मुझे सम्मान से ज़्यादा आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं अभी। कहते हैं ये काम मतलब बहुत टाइम मुझे अपने आप में क्वेश्चन आता है, लोग मतलब इतना स्पेशल फील करवाते हैं कि आप ये कर रहे हो, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि हम वो कर रहे हैं जो हर एक इंसान को करना चाहिए, और मैं एक नॉर्मल काम कर रहा हूँ और मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, एक कॉन्फिडेंस आता है जो मेरे को मेरे डेली के लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे दूसरे बिजनेस में, कारोबार में, सब कुछ में हौसला देता है। तो ये कहते हैं कि हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी खुशी के लिए करता है, कोई घूमने जाता है, कोई डांस करता है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियोस देखता है, क्यों? क्योंकि उन्हें खुशी मिले। तो मुझे यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए काम करता हूँ। बाकी किसी का अच्छा सिर्फ भगवान करता है, वो कोई ना कोई जरिया बनाता है, और मैं नहीं भी रहूंगा तो लोगों की जिंदगी चलती रहेगी। उससे पहले भी उनकी जिंदगी चल रही थी, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है सो ईश्वर है, वो हमारी परीक्षा लेता है और परीक्षा पूरी होने पे हमें कोई रास्ता भी दे देता है। और एक्चुअली मैं 7 साल से सोशल वर्क के फील्ड में हूँ। जब मैं मतलब मेरा कॉलेज भी, मैं शेल्टर होम में खुद रहता था और एक केयर टेकर की वहाँ पे जॉब करते हुए मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की है दिल्ली के अंदर, और उसी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उस टाइम पे एक होमलेस प्रोग्राम भी मैंने ज्वाइन किया था 2015 में, जो लोग स्ट्रीट पे सोते हैं वहाँ पे। तो क्या है, मैं कभी ट्रैवल भी करता हूँ तो मेरी नज़र हमेशा रोड के साइड होती है कि लोग कौन होते हैं, क्या होते हैं। बाद में मैं सोशल मीडिया पे आया, उसका एक कारण भी था कि हमें जो लोग मिलते थे ना, तो उनका कोई ना कोई घर होता होगा, कोई ना कोई फैमिली होती है। मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते थे कि इनका कुछ तो होगा, तो हमने उसकी हेल्प के लिए, हमारे पास पुलिस है, सब है, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उन्हें कुछ याद नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो पुलिस कैसे ढूंढेगी? हमारे अगर हम लोग सही भी है, अगर हमारे घर का कोई खो जाए, हमें पुलिस के पास कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितना सोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी वर्कलोड, काफ़ी केसेस होते हैं। लेकिन जो आदमी के पास अपने चेहरे के अलावा कुछ नहीं है, उसे ढूंढना कितना मुश्किल है। तो हमने ये सोशल मीडिया का यूज किया। आजकल हर लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर कोई वीडियो देख रहा है, तो मान लो हमारा वीडियो उनके फैमिली तक या उनके पड़ोसी तक जाए, तो वो तो उसे पहचान जाएंगे कि ये हमारे ही घर का है, तो हमें डायरेक्ट कॉल आएगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कम से कम 20 से 25 लोगों को उनको फैमिली तक पहुंचाया है, जो अलग अलग राज्यों से, कोई बिहार से, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई तेलंगाना से, कोई महाराष्ट्र से। तो जहाँ तक हमारा वीडियो वायरल होता है और काफ़ी करोड़ों लोग उसे देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया में आया। फिर धीरे धीरे इस काम में जैसे जुड़ता गया, तो मुझे सीनियर सिटीजन पे जब मैं काम करा, तो मुझे 2 तरह के सीनियर सिटीजन मिले। एक तो ऐसे मिले कि जो मतलब कुछ नहीं कर सकते, ऑन बेड है और डाइपर पे है, या उनको केयरिंग की जरूरत है, तो वैसे सीनियर सिटीजन को हमने शेल्टर होम में शिफ्ट किया। हमारे शेल्टर होम है, वहाँ पे हम उनको लेके आए, उनका देख रेख सब चीज़ करने का हमने काम किया। बाकी दूसरे में ऐसे आते हैं कि वो है, वो काम अपना कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हम 1 साल का जो है पूरा राशन का सामान, जो भी वो खाते हैं उनके हिसाब से वो पूरा उन्हें हम ला करके देते हैं। और तीसरे में ऐसे भी सीनियर सिटीजन मिले कि जिन्हें क्या है कि मुझे काम करना है, हम काम कर सकते हैं और हमें काम में अच्छा लगता है, तो उनके प्रायोरिटी बेस पे हमने उन्हें कोई काम का सेटअप करवा के दिया, कोई जगह पे दुकान लगा के दी, जिससे स्टॉल, ताकि वो आगे कमा सके। उसका एक टाइम का जितना सामान सब कुछ हमने प्रोवाइड किया, बाद में वो उसको सेल करके आगे बिजनेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आज वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और डेली का 1000-2000 ऐसा उनका बिजनेस चल रहा है। तो मैं रेगुलर फीडबैक भी उनसे लेते रहता हूँ। फिर आया डिसेबल के ऊपर कि मुझसे काफ़ी डिसेबल लोगों के कॉल आए, उनसे मिला, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन थी कि हमें कोई जॉब नहीं देता है, हमें कोई काम नहीं देता है, हम पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं देता है। उसमें मैंने भी सोचा कि अगर मैं ही एक कंपनी का ऑनर हूँ या दुकान का ऑनर हूँ और मेरे पास 2 व्यक्ति हैं, एक डिसेबल हो, एक पूरा सही हो, दोनों को सेम सैलरी देना हो, दोनों से काम है, तो मैं किसे चूज करूँगा? तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि ये डिसेबल को रखे। उससे अच्छा पूरा आदमी मिलेगा तो वो ज़्यादा आउटपुट देगा, ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ करके देगा, तो उन्हें कोई जल्दी काम पे नहीं रखता है, और रखता भी है तो बहुत कम सैलरी पर रखता है। उनका फिर फ्यूचर आगे नहीं होता, जब तक वो कर सकते हैं, आगे उनका भी बुढ़ापा आता है, उनके स्टेज भी चेंज होते हैं, तो उनके पास कुछ ऐसा रहता नहीं है। लेकिन उनके पास जो होता है वो है हौसला। उन्होंने जो जिंदगी देखी है उससे जो उन्होंने प्रताड़ना सही है, तो उनके पास एक हौसला होता है कि मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं उसमें पूरा दूंगा।
तो हम उन्हें बिजनेस का सलाह देते हैं कि आप अपनी कहीं भी दुकान लगाओ और उसमें अपना दो। तो अभी कम से कम मैंने 100 दुकानें दी हैं ऐसी पूरे माल सामान के साथ, और वो सारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। ये हेल्प ड्राइव फाउंडेशन के थ्रू मैंने अभी रिसेंटली 15-20 दुकान हुई है, तो उसमें जितनी भी दुकानें हैं मैं सबका एक फीडबैक भी जाके लेता हूँ 2 महीने 3 महीने बाद कि क्या चेंजेस आए, वो भी सरप्राइज विजिट करके। तो बहुत ऐसी दुकान जिसको मैंने दिया था ये स्टॉल बिस्किट और ये पान का, लेकिन बाद में उन्होंने साइड में नाश्ते का भी खुद से ओपन कर लिया, चाय का भी कर लिया, तो उन्होंने अपने बिजनेस को सीधा डबल ग्रोथ किया और उनकी पर्सनैलिटी, बात करना, सब कुछ चेंज हो गया। तो ये देख के मुझे अच्छा लगता है। ये जो संतोष है उनसे पूछते भी है कई लोग संकोच, लास्ट में ही मैं की हेल्प कर रहा था तो मुझसे पूछे कि आपको भी कुछ देना पड़ेगा, बाद में रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सक्सेस हो गए ना, वही मेरे लिए रिटर्न है। वो देख के मुझे खुशी मिलती है जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ। बदलाव के बारे में एक बात बता देता हूँ, मैंने वीडियो देखा है, इन्होंने पूछा आपने क्या बदलाव आया है स्टॉल बनाने के बाद, तो 2 या 3 जन ने बोला हमारी शादी हो गई, नहीं होती थी। हाँ, उनका डिसेबिलिटी के कारण थोड़ा शादी नहीं होता है या कुछ ऐसा, तो वो मैंने पूछा कि कैसे शादी, बोला अब कमाने लगाओ ना तो इसलिए आने लगे रिश्ते। तो उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए और वो अच्छे हुए, ये भी बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद अभी जैसे आपने ज्योति का ही देखा तो उनके मदर फादर कोई नहीं है, ऐसे जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप कोई नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए भी हम काम करते हैं, उनका स्कूल में एडमिशन, हॉस्टल रहना पढ़ना, ताकि वो आगे तक कर सके। हमें इसमें काफ़ी NGOs भी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी जो ऐसे NGOs हैं जो सिर्फ बच्चों पे काम करते हैं, फ्री एजुकेशन पे काम करते हैं, तो उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं और सबके साथ और सबके सहयोग से ये काम करते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। यहाँ पे भले आपको एक चेहरा दिख रहा हो, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, इसमें बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत लोग साइलेंट रूप से हमें मदद कर रहे होते हैं, बहुत लोग फाइनेंशियल मदद भी कर रहे होते हैं, बहुत लोग जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उनकी शेयरिंग भी हमें मदद करती है, बहुत लोग हर तरह से मदद करते हैं। काफ़ी लोग फ़ोन भी करते हैं कि हम हेल्प करना चाहते हैं, हमें कैसे करें, तो उनको मैं एक स्पेशल मैसेज देता हूँ। मैं हमेशा कहते भी रहता हूँ कि मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं हमारे पास पैसा हो, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से और ऐसे कंडीशन से निकला हूँ कि उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं कैसे मदद करता हूँ। मदद करने के लिए एक अच्छा दिल होना चाहिए, हमें टाइम से भी किसी की मदद। मेरा टैगलाइन ही है मेरे NGO का, हेल्प ड्राइव फाउंडेशन का, कि आपका थोड़ा सा समय किसी की जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जो बुजुर्ग है, हमने अभी काफी बुजुर्गों को लाया, उन्हें बहुत ऐसे है कि उनको पैसे की भी तकलीफ नहीं है, उनके बैग में पैसे ही पैसे मिलते हैं। बहुत ऐसे हमने रेस्क्यू किया है जो बेगर्स हैं, उनके पास 30-40 हज़ार रुपए, आधे पैसे सड़ गए। पैसा संतोष नहीं दे सकता है, पैसा जिंदगी नहीं दे सकता है, उसके लिए चाहिए केयर, कोई हमारे पास बात करने वाला हो। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बंगला है, घर है, फिर भी वो ओल्ड एज होम में रह रहे, क्योंकि उनको जीवन में कमी है तो सिर्फ बात करने वाले की, कि कोई उनसे अच्छे से 2 लाइन बात करे ना, उन्हें वही चाहिए, उन्हें बाकी कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। उन्हें ना गाड़ी की जरूरत है, ना वो कोई ज़्यादा खाते हैं, 2 रोटी 1 रोटी खाते हैं उस उम्र में, तो उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, बस प्यार की जरूरत होती है। तो हम अगर अपना समय किसी के साथ बिताएं, उनसे थोड़ी बातें करें, वो भी एक मदद है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं स्ट्रीट पे, चलो हम पैसा नहीं दे सकते, अगर हम जिंदगी का 1 घंटा निकालें कि हम 1 घंटे जाके उनको एजुकेट करेंगे। बहुत ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम है जो उन्हें नहीं पता है, जो बहुत इजीली उनको मिल सकती है, बट वो अवेयर ही नहीं है कि हमारे लिए भी ऐसी कोई चीज़ है, तो हम उसे एक डायरेक्शन दे सकते हैं अपने नॉलेज से। तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद होती है, तो हम मदद किसी भी तरीके से लोगों की कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपने बहुत जानकारी दी, हम सब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपके वीडियो और आपको देखकर हम सीनियर सिटीजन 70 साल के और बहने बैठे सेवा कर रहे हैं, बस आपकी तरफ से हमें भी मार्गदर्शन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, और सब बैठे सब कुछ अच्छे कार्य से जुड़ जाए, जिंदगी में कुछ नहीं ले जाना है, सब कुछ रह जाएगा। तो आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। तो जरा अपना हाथ ऊंचा कर दो तो खबर पड़े कोने નથી કરી। બસ વેરી ગુડ વેરી ગુડ। ટૂંકમાં હું તમને એટલું કહું છું કે 5 મહિના પહેલા જે અમે આ એક્ટિવ સિનિયર સિટીઝન ગ્રુપ ચાલુ કર્યું, આજે અમે 50 થી 55 મેમ્બર થઈ ગયા છીએ, અને મારી આપ સૌને આજે આવેલાને વિનંતી છે કે જે ન થયા હોય પણ આ સંસ્થાના મેમ્બર થઈ જાય, અને આપણે સાથે મળીને આજે કામ મોટું કામ
તરુણભાઈ જે ગુજરાતમાં કરી રહ્યા છે એ કામ અહીંયા કરવા માટે આપ સૌનો સાથ અને સહકાર મળે એ માટે આપ મેમ્બર તરીકે જોડાઈ જાઓ। मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा बहनों भाइयों कि ये वीडियो देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा कि मैं ये दर्द को देखता हूँ तो पता नहीं इतने सारे दर्द हिंदुस्तान में कितने होंगे, और ये दर्द को पूछने के लिए जो ये दोनों नौजवान जो है काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तरुण जी, यहाँ हमारे शासन वीरांगना ग्रुप की लेडीज आई है, वो आपसे इतने इंस्पायर हुए, बोल रहे हमको आपके साथ जुड़ना है, तो कैसे आप उनको क्या मतलब कैसे काम में जुड़ाएंगे? अभी हम लोग ये प्रोग्राम के बाद, क्योंकि इनका टाइम भी खत्म हो रहा है, तो हम लोग पर्सनली डिस्कस कर लेंगे कि हम कैसे आगे कर सकते हैं। और मुझे भी यहीं पे काम करना है। अभी मैं विरार में रुका हुआ हूँ और हर 10 दिन 15 दिन के इंटरवल पे मैं विरार मुंबई आते रहता हूँ। और ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है क्योंकि काफ़ी कॉल्स मुंबई से भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं और कैसे टीम वर्क हो सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। તો જે બી અપડેટ હશે આપણે બધા ગ્રુપમાં નાખીશું। હા, નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ। તરુણભાઈ મિશ્ર અને પ્રતિકભાઈ ખેરડા ઘાટકોપરમાં મારા ખ્યાલથી આજે મહાનુભાવ બેઠા છે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ થયું છે। હું પોતે ઘાટકોપર બ્રાહ્મણ સમાજના સિનિયર સિટીઝન ચલાવું છું, પણ આવું મેં જોયું નથી મારા એમાં પોતામાં। અને खरेखर इतना अच्छा आपने किया है कि हमारी आंखें खोल दी है। फर्स्ट टाइम मैंने ये सब देखा है। आपका तो मैंने फेसबुक पर बहुत सारा देखा है कि कभी किसके बाल काटे किया है, बहुत सारा देखा। और आपका भी सीखने जैसा है कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम वो यूज नहीं करते हैं अभी तक। तो मैं ये सोचती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, जो भी खेरनार साहब ने, मिश्रा साहब ने आप लोगों को जो भी सुविधाएं दी है, बताइए कि हम इतना कर सकते हैं। तो सब आज से सब जुड़ जाओ मिश्रा साहब के साथ और खेरनार साहब के साथ। आज से ही जुड़ जाओ, मना मत करो, पैर पीछे मत हटाओ, आगे चलाओ। और हम भी तुम्हारे साथ है, ब्राह्मण समाज भी आपके साथ 100% रहेगा। थैंक यू सो मच।